Hello, can you hear me now? I hope now the audio should be fine. Hello and good evening, and welcome to what is now our fourth class of Science and Tech. I hope you can now see and hear me both. If there is an echo issue, please rejoin. हर class में same बात बोलता हूँ मैं. If there is an echo issue, please rejoin. There is no echo issue on our side. Okay. All right. Hope you're all doing well. Hope you are all doing well. Hope everything is going fine. Okay. So now that you can see and hear me, all right. Doubts हैं मोहित तो डाउट फॉर्म में लिखो. Can't say the same thing in every class, है ना? All right. So, guys, today we are going to have a slightly shorter class. Okay, I'm not feeling that great today, so just have a shorter class today, and in lieu of that, we might have a longer class tomorrow. Right? I'm just letting you know in advance. We'll have a short class today, and tomorrow we will have a slightly longer class. Tomorrow we might have a 4-hour class. Today we are going to have about a 2-hour class. Okay, so I'm just informing you in advance. I'm not feeling that great, a little bit of headache. We'll continue the class, but 2 घंटे में खत्म करेंगे. ठीक है? All right. So just to recap whatever we have done so far. Again, like the instructions have been given to you, we are not going to read anything from the slides when you are revising. Right? Slides are there only for you to have reference. When you have to finally revise, please use these notes. So till now we have studied about cell, we have studied about nucleus, eukaryotic and prokaryotic nucleus, etc., cell organelles. All of this we have done. Endosymbiotic theory we have done. We have understood DNA structure. We have understood central dogma of genetics. We have understood human reproduction broadly. Understood mitochondrial replacement therapy. Understood in detail the processes of transcription and translation. Understood the concept of mutations. Understood the genetic code, microRNA. Then we understood the basic process of biotechnology. And after understanding this basic process of biotechnology, we then went on and understood RNA interference. And we also understood what are GM crops. Okay. DMX11 also we had understood. And we are going to start with regulation of GM crops today. This was some of your homework, right? I hope you have all read these slides at least once, so that we can go a little bit quickly once this is concerned. I hope ये पढ़ लिया सबने, इसकी slides पढ़ ली हैं. Just reading them once. It's not like you have to revise from them, but I hope you have all at least read them once. Okay. Okay, I'll just check. From my side, the PPT has been made. If there is some issue in uploading, वो upload हो जाएगी. I'll just ask the team. वो देख ही रहे होंगे ये class, तो I'll just ask the team that they'll upload the PPTs. That's not an issue. Okay. All right. So let us now understand the regulation of GM crops in India. So हम क्या पढ़ रहे हैं कि whether we should allow GM crops or not. What are the issues of GM crops and whether we should allow them or not. This is what we are going to read. So we are going to start from here, the challenges of GM crops. Some people were asking me yesterday what is the current status of Dhara mustard hybrid 11, which is GM mustard. तो इसका current status क्या है? Current status is that this case went to the Supreme Court.
Supreme Court gave a split verdict. What was the split verdict? There was a 2-judge bench. One judge said that you should allow GM mustard. You should allow it, and it is something that should be permitted to be cultivated across the country. The other judge cited something called the precautionary principle. So the other judge said that there is a principle called precautionary principle, and on the basis of this precautionary principle, we are not going to allow GM mustard till there is future research. Although we are going to read this in environment also, but let me just explain to you what is this precautionary principle. The idea behind the precautionary principle is that if there is a scientific or a new technology or a new scientific method that you have to introduce, जैसे GM mustard is sort of a new scientific discovery that we have to introduce. It is something new, the effects of which on the environment are not known. आपने कोई नई चीज करनी है, आज तक आपने GM mustard ट्राई तो किया नहीं है. You want to try out GM mustard, right? And this is a new thing. ये एक नई चीज है जो till today we have not tried. Okay. Now, if till today we have not tried GM mustard, how do we introduce it? How do we manage it? Right? Precautionary principle says that अब let's say इसका कुछ environmental effect है. This environmental effect is unknown. It can be good, it can be bad, we don't know. So precautionary principle says that it is better to take precaution. आप पहले precaution ले लो, आप पहले बोल दो कि यार let me be slightly on the side that let me take precaution and say कि खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, तो let me err on the side of caution. Let me say कि यार मैं precaution लेके कह रहा हूँ कि अभी नहीं करते. Till I am sure that it will not have any bad environmental effect, I will not use it. Right? This is the idea. This principle, when it was agreed, two principles were agreed together: precautionary principle and polluter pays principle. Both these principles we will read in detail in environment. I am just giving you this context ताकि जब environment पढ़ें तो हमें ये याद रहे. Remember this precautionary principle then also. Now, what are the possible environmental challenges that might have arisen due to this introduction of GM mustard? सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि हमें पता नहीं क्या एनवायरमेंट पे इंपैक्ट्स हैं, सो आई विल टेक अ प्रिकॉशन. जब तक कंफर्म ना हो जाए कि बिल्कुल सेफ है तब तक मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा. एंड दिस इज नॉट ओनली विद जीएम मस्टर्ड, दिस इज विद एनी जीएम क्रॉप. कोई भी जीएम क्रॉप होगा उसके कुछ बायो सेफ्टी के चैलेंजेस होते हैं. अब ये बायो सेफ्टी के चैलेंजेस क्या हैं एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये हम समझते हैं कि जीएम क्रॉप्स में चैलेंजेस कहां से आते हैं. राइट, सो लेट्स रीड दिस स्लाइड एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सी, दिस सेज that there is a challenge of biosafety. There is a challenge of biosafety that wild species can be eliminated and there can be pollution of gene pool. इस बात को समझते हैं, इस बात का मीनिंग क्या है. Let's say you decide that I am going to use GM cotton. मैंने GM cotton क्या है? BT cotton. I am going to introduce BT cotton. Now if you look at the natural population of cotton, उसके पास तो ये BT gene नहीं है. So there is one GM variety that you have introduced and one natural variety. अब आप इनको कल्टिवेट करोगे. एक जगह पे BT cotton कल्टिवेट हो रहा है, एक जगह पे नेचुरल कॉटन कल्टिवेट हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड. जो भी बॉल वॉर्म्स हैं, जो ये बॉल वॉर्म है, ये नेचुरल कॉटन को तो खाता जाएगा. So in nature it is something that is, you all must have heard, that is said very often, survival of the fittest, Darwin's theory, right? So ball worm natural cotton को तो खा सकता है, but ball worm BT cotton को नहीं खा सकता. Over time what will happen, this natural cotton will keep getting eaten more and more, BT cotton will survive more and more, and there will be a time when we will only have BT cotton left. एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सिर्फ BT cotton रह गया है और कुछ भी नहीं बचा है. This can happen. Once this happens, now the wild species, then wild species means natural species that did not have these BT genes, is eliminated. And the gene pool is polluted. Gene pool का क्या मतलब? Cotton plants में जितनी भी genes हैं, जितने भी cotton plants सब बचेंगे अर्थ पे, सबके पास ये नई man-made introduced gene है. कल को मान लो एक ऐसा वायरस आ जाता है जो सिर्फ इसी को इंट्रोड्यूस करता है, इसी को अफेक्ट करता है. There is a new virus, new disease,
that only affects BT cotton but does not affect natural cotton. तो क्या होगा, फिर ये वाली स्पीशीज को भी दिक्कत हो जाएगी. So in general, genetic diversity, genetic variability and genetic variability is a good idea. Genetic variability, genetic diversity is a good idea for humans, for any living organism, for animals, for plants. Variability, जितनी ज्यादा variation होगी उतना अच्छा होगा. जैसे in humans we have so much variation. There is white skin, there is dark skin, there is other, tall humans, short humans, etc. Blue eyes, black eyes, brown eyes, etc. ये वेरिएबिलिटी जनरली इज अ गुड आइडिया, बिकॉज मान लो कोई ऐसा नेचुरल इवेंट हो गया जिस वजह से किसी एक टाइप के लोगों को ही डिजीज हुई. जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, बट लेट्स अज्यूम दैट देयर इज सम वायरस दैट कम्स एंड ओनली अफेक्ट्स एंड किल्स पीपल हु हैव ब्लू आईज. अगर ऐसा है, व्हाट विल हैपन? पॉपुलेशन ऑफ ब्लू आईज विल फेड अवे, बट जो बाकी लोग हैं दे विल सर्वाइव. अगर हम अब ऐसा कर दें कि नेचर में हम खुद कुछ मैनिपुलेशन करके सारे ह्यूमंस को ब्लू आईज दे दें, बिकॉज वी फील ब्लू आईज आर बेटर, देन इफ सच अ वायरस कम्स द एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन विल बी अंडर थ्रेट. तो जितनी वेरिएशन होगी उतना बेटर होगा. बट द प्रॉब्लम विद जीएम क्रॉप्स इज दैट इफ यू इंट्रोड्यूस देम, दिस वेरिएबिलिटी एंड वेरिएशन कैन गो अवे एंड कैन लेटर लीड टू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. ये पहला इशू है. सेकंड, आपने किसी क्रॉप में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करी. You did some genetic modification in a crop. Let's say you did genetic modification in mustard. अब मस्टर्ड में हमने क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन करी कि हमने बार्नीज, बार स्टार, बार, ये 3 जीन्स यूज करी, राइट? हाउ डू वी नो वेदर इट इज गोइंग टू बी सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और नॉट? ह्यूमन इसको कंज्यूम करके सही रहेगा या नहीं? आप कितने भी ट्रायल्स कर लो, कितनी भी रिसर्च कर लो, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के लिए क्या करना होगा? किसी को मस्टर्ड खुला, यू हैव टू मेक देम ईट दिस जीएम मस्टर्ड एंड देन यू हैव टू वेट फॉर मे बी 10 years एंड सी के 10 years में क्या इनको कोई इफेक्ट हुआ, 15 years में कोई इनको इम्पैक्ट हुआ. सो इमेजिन हाउ मच रिसर्च इज रिक्वायर्ड, राइट? सो देयर आर सम सेफ्टी इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन कंजम्पशन. अब ये इशू कॉटन पे अप्लाई नहीं करता. आई डोंट हैव टू ईट कॉटन बट आई हैव टू ईट मस्टर्ड. ये एक प्रॉब्लम है. थर्ड, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इशू. It is called trait fees and terminator genes. अब ये बीटी कॉटन की जो टेक्नोलॉजी है, ये बनाई थी एक कंपनी बाय द नेम ऑफ मोन्सांटो. अमेरिकन कंपनी है मोन्सांटो, जिसने ये बीटी कॉटन की टेक्नोलॉजी डिस्कवर की थी. अब थिंक ऑफ इट, इमेजिन योरसेल्फ बीइंग अ फार्मर ऑफ कॉटन. आपने कॉटन का प्लांट लगाया, कॉटन प्लांट, अब ये बीटी कॉटन है, इट इज सेफ फ्रॉम बॉल वॉर्म्स. ये बॉल वॉर्म से सेफ है. बट बीटी कॉटन विल नॉट जस्ट प्रोड्यूस कॉटन, इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस सम सीड्स. इन सीड्स को यूज करके आप एक और कॉटन का प्लांट लगा सकते हो. यू कैन हैव अ न्यू कॉटन प्लांट, द नेक्स्ट ईयर्स क्रॉप ऑल्सो यू कैन मेक. फिर इसकी सीड्स आएंगी, इससे नेक्स्ट ईयर क्रॉप यू कैन मेक. अब मोन्सांटो को लगा यार कि मैंने तो एक बार इस बीटी कॉटन की सीड बेची फार्मर को. आई एम मोन्सांटो, आई सेल यू द सीड्स ऑफ बीटी कॉटन वंस. एक बार आपने खरीद ली, आपने बीटी कॉटन लगा लिया. अब लाइफ लॉन्ग आप इसी प्लांट के सीड्स को यूज करके अपना नेक्स्ट क्रॉप कॉटन का लगाते रहोगे एंड मोन्सांटो विल नॉट गेट एनी मनी. तो मोन्सांटो ने क्या बोला कि एक ऐसी जीन भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं बीटी कॉटन में कि सीड्स में, बीटी कॉटन की जो सीड्स होंगी उसमें ये फीचर ट्रांसलेट ना हो. अब बीटी कॉटन की सीड आपने खरीदी, यू प्लांटेड बीटी कॉटन, इट इज अ बायोपेस्टिसाइड, इट इज सेफ फ्रॉम बॉलवॉर्म्स. You take the seeds of that BT cotton plant and try to plant it again. That plant will not have the same characteristics. इन्होंने genetic modification करी ही ऐसे है that this BT cotton gene will terminate. It is called terminator gene. It will terminate in the first instance. आप इस कॉटन प्लांट का अगर प्रोजेनी प्लांट, इसका सीड यूज करके एक और प्लांट लगाओगे, the next generation you want to plant, उसके पास के BT वाले कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे. This is called terminator gene technology. Also, if any Indian company now wants to make BT cotton seeds, Monsanto has the patent over it. हम intellectual property law भी पढ़ेंगे.
Monsanto has the patent over it, so you have to pay them royalty and trade fees. If I now want to start a company that is producing BT cotton seeds, तो मुझे Monsanto को फीस देनी पड़ेगी because I am using their patented technology. These two main issues were there in terms of the farmers' socio-economic issues. The third thing was genetic divide. We read about digital divide. There are some people who have access to the internet, who know how to use their phones, lucky people like you. There are also people who don't have this access. Imagine if you were in some part of the world, or in some part even in the country, where you did not have the requisite literacy to actually operate a phone and operate the internet. आप अपनी लाइफ की एम्पावरमेंट कितनी कम हो जाती है ये सोचो. This is digital divide. People who can use these digital technologies and those who can't. तो अगर हम GM ज्यादा यूज करेंगे, it might create a genetic divide between small and large farmers. Large farmers will be able to pay the money and plant these BT crops, but small farmers will keep growing natural cotton and they will be at a disadvantage, and this gulf between them will keep widening. तो ये issues थे. Now, this trade fees and terminator gene technology, very interestingly, recently I'm sure you have all read about the tariff tensions between the United States and India. One of the major issues that you will see in all articles where this is being cited is called seed sovereignty. What is this seed sovereignty? US is saying that India, when it is importing goods from the US, it places a lot of tariff, right? It places a lot of tariff. So we will also place tariffs on you. Why should US give India free access to its markets when India does not give US free access to market? तो वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि हम आपके गुड्स पे टैरिफ ना लगाएं, आप हमारे भी गुड्स पे टैरिफ ना लगाओ. अब इंडिया कहता है ठीक है, हम नहीं लगाएंगे, बट द ओनली इशू हियर इज एग्रीकल्चरल कमोडिटीज. यूएस में बहुत बड़ी बड़ी सीड्स कंपनीज हैं, जैसे मॉन्सांटो, जैसे यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ दिस कंपनी बेयर. These big companies, once they get access to India's market without any tariff, without any duty, they get access. What is going to happen? ये Monsanto and Bayer, they are now going to dominate the Indian market. Indian seed industry अभी उतनी developed नहीं है. Domestic industry हमारी इतनी अच्छी नहीं है कि हम इनसे compete कर सकें. Once they come into the market, they are going to sell these seeds. These seeds are going to have this terminator gene technology. They are going to charge trade fees. They are not willing to understand the socio-economic conditions of India. उनको तो यार हमें profit कमाना है. So this genetic divide will become even bigger. Our domestic seed industry might collapse, and our farmers might be forced to pay even higher prices for seeds. So over time, they will have much better seeds. So our farmers might be forced to pay more prices for seeds, and those farmers who will not be paying these extra prices, जो farmers ये extra price नहीं pay करेंगे, their yields will be down, और वो जो rich poor divide है वो even greater हो जाएगा. So I was seeing that once this tariff issue was in the news, a lot of criticism was coming for our government कि यार आपने ये tariff issue solve नहीं किया. But if you heard the words of the Honorable Prime Minister, he said one thing, and it was a very beautifully said line, but he didn't elaborate on it. He said, if you want to criticize me, it's fine, but I will not compromise with India's farmers. And it was in the context of this tariff deal. So this tariff issue mainly boiled down to this seed sovereignty issue, right? And that is why we said we will not give entry to American companies. When we said we will not give entry to American companies, the US government also said that, okay, we will then place tariffs on you. समझ आ रहे हैं issues and challenges of GM crops? So this question is pending in the prelims since a long time. In the main since a long time. There might be a question on whether we should allow GM crops in India or not.
दिस क्वेश्चन इज पेंडिंग, ये कभी ना कभी आना ही है फ्यूचर में. ओके, सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2017 गेव सम सजेशंस कि कैसे अब हम डील करें. जीएम क्रॉप्स के फायदे भी हैं, बेनिफिट्स हैं, एंड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो लाइक वी सॉ. सो इकोनॉमिक सर्वे सेड that we should have certain principles in deciding whether we need to allow GM crops or not. So their principles were that first, allow the GM seeds that are low cost and do not have terminator genes. Second, they said that you need to encourage domestic production of GM crops so that this monopoly of multinational companies can be ended and our domestic industry would be empowered and encouraged to have more and more GM crops. Then they said that you allow GM seeds for non-food format crops. If it is not a food crop, जैसे mustard तो फिर भी food है because all of us consume mustard oil or mustard ketchup or those things we still consume. But अगर ये non-food crop है, जैसे मान लो rubber, if we are trying to have something called GM rubber, then it's not a problem. Then these conditions were laid out. Then they said that crops that are helping in these three things, pest control. Why did they said कि इन तीन चीजों में आप GM crops को अलाउ करो, pest control, long shelf life and short crop duration. अब see, this would be superficial reading that we just understand कि हाँ ये तीन चीजें हैं, but why did they say these three things only? There is a logic behind each. Pest control पे उन्होंने इसलिए बोला कि already Indian agriculture की काफी हालत खराब है when it comes to pesticide use, right? We use a lot of pesticides, still there is a lot of crop loss, proper application is not there, farmers also have health issues, so many issues are there with regards to pesticides. तो ये एक issue है. Second उन्होंने कहा long shelf life. What does this mean? Let's say मैं आज एक टमेटो प्रोड्यूस करता हूँ, टमेटो will get spoiled in 30 days. 30 days बाद वो फ्रेश टमेटो जो है वो बेकार हो जाएगा, उसके बाद उसको कोई नहीं खा सकता. So the shelf life of that tomato is 30 days. Now the problem is that if I want to export that tomato to, let's say, the US or export that tomato to Europe, it takes, ship पे जाएगा, so it takes approximately 40 days for that tomato to get to the US. On the ship, after all the logistics to go to the US consumer or to go to the European consumer, it is taking 40 days. मैंने आज बनाया from my farm in India, for it to go to, let's say, a consumer in Paris, it is going to take 40 days. The tomato gets spoiled in 30 days. तो अब ये कैसे काम करेगा? So they said that this is the shelf life, this 30 days जिसमें खत्म हो जाता है, this is the shelf life. तो कहते हैं ऐसी GM modifications अलाउ करो जो इस 30 days को 90 days बना दे, तभी एक्सपोर्ट हो पाएगा. अगर पहुंचाने में 40 days लग रहे हैं और 30 days में वो खराब ही हो जाता है, तो हम तो कभी टमेटो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे. This is why they recommended that GM crops with long shelf life should be allowed. Third, they said short crop duration. Let's say wheat को उगाने में, just giving you an example, wheat को उगाने में let's say 6 months लगते हैं, just an example, and rice को उगाने में भी 6 months लगते हैं, right? अब अगर 6 months लगेंगे पूरे क्रॉप साइकिल को, क्रॉप को आप सो करोगे, फिर वो ग्रो करेगा, फिर आप उसे हार्वेस्ट करोगे, उसमें अगर व्हीट में भी 6 months लगते हैं और राइस में भी 6 months लगते हैं, तो एक इंडियन फार्मर में 2 ही क्रॉप उगा सकता है, एक व्हीट और एक राइस. बट इफ यू आर एबल टू कम अप विद अ टेक्नोलॉजी दैट कैन रिड्यूस दिस ग्रोथ टाइम, दैट कैन मेक दीज wheat and rice plants grow faster, then what will happen? Let's say wheat is now growing in 4 months, rice is growing in 4 months. So now in 1 year, one farmer can plant a third crop also. वो फिर से wheat plant कर सकता है 4 months के लिए. तो short crop duration को उन्होंने recommend किया. And non-food, I've already told you, non-food में human safety का impact काफी कम हो जाता है. So if I'm wearing a shirt made of BT cotton, it's not going to impact my body. But if I'm eating GM mustard or eating BT brinjal, तो major issue हो सकता है. This was the suggestion that the economic survey gave. ये टेस्ट हम कल कर चुके हैं. We've already discussed this test yesterday. So now I had asked you to just take a look at this. So in India, how are GM crops regulated? So this regulation basically happens at 2 levels.
ब्रॉडली पढ़ना है तो यही 2 लेवल्स हैं कि देयर इज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी. नाउ वन टिप फॉर प्रीलिम्स, इफ एनी बॉडी इज एंडिंग विद द वर्ड कमिटी, अगर कमिटी से एंड कर रहा है, इट इज यूजुअली हेडेड बाय सम और द अदर ब्यूरोक्रेट, यूजुअली एन आईएएस. But if any body is ending with the word council, it is usually headed by a political leader, usually a minister. This rule is mostly applicable. कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं that XYZ council is headed by cabinet secretary और XYZ committee is headed by prime minister. तो वहां पर आप ये रूल यूज कर सकते हो and you can apply this. For example, if you look at GST council, who is the head? The head is finance minister. So minister. If there is GEAC, who is the head? Environment secretary is going to be the head because it's a committee. District level पे भी there is a genetic engineering committee, उसकी बात करेंगे. Who heads it at the district level? It is headed by the district magistrate. Disaster management committee of the district headed by district magistrate who is an IAS. But अगर आप कहीं भी councils की बात करोगे, National Ganga Council, who is heading this council? Council is always headed by a minister. So National Ganga Council is headed by our honorable prime minister. So these are the things that you can use sometimes to get your answers right. Okay. तो ये 2 चीजें हैं. पहले ये जो GEAC ये जो कमिटी है headed by a bureaucrat, they give the recommendation. वो स्टडी करते हैं, सारी अंडरस्टैंडिंग करते हैं and they give the recommendation कि हाँ ठीक है या नहीं है. And final permission comes from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So final permission will come from the ministry. Committee is there to conduct the scientific studies and give its recommendation. Final decision, of course, rests with the ministry. Now, what is the rules framework? So, ये act हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे. Environment Protection Act, when we read Environment Protection Act 1986. The rules have been framed as per the EPA of 1986. So, this is the broad, it is the umbrella legislation. एक umbrella legislation का मतलब है कि जो भी environment activity हो रही है उसके बारे में गाइड करने के लिए EPA is the overall framework, overarching framework. तो ये जो EPA है इसके अंडर रूल्स बने हैं. The rules are these: manufacture, use, import, export, storage of hazardous microorganisms, etc., etc. 1989. What you need to remember is 1989 rules. So Act gives the overall framework, and rules are the actual rules that we use, right? So these rules are very broad in scope, and they cover almost all the elements that are related to GM crops. Okay. Broadly, अगर आपको GM crops की regulation देखनी है तो इतना बहुत है. But if somebody will try and confuse you in an MCQ, they will say that, for example, recommendation of GM crops in India is given solely by the GEAC, only by the GEAC. इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है. So although इससे ज्यादा हमें ओवरऑल जानने की जरूरत नहीं है, just need to know that there are various committees. Main committee is GEAC, but there are various committees. इनके रोल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. You just need to know कि committees exist करती हैं. So firstly there is a advisory committee called recombinant DNA advisory committee. ये एडवाइस देती है कि भाई ये वाला recombination of DNA, recombinant DNA means joining two pieces of DNA generally not found together. ये recombinant DNA होना चाहिए भी या नहीं, will it be beneficial or not, that advice comes from here. Then there is institutional biosafety committee, review committee on genetic manipulation and GEAC. ये तीनों मिलके अप्रूवल देती हैं. तो पहले आपने एडवाइस किया कि यार ये कर लो, फिर किसी साइंटिस्ट ने वो आपकी एडवाइस के हिसाब से जेनेटिक मॉडिफिकेशन करी, नया क्रॉप प्लांट बनाया, समथिंग न्यू दे क्रिएटेड. देन whatever they have created you will study and you will approve it कि यार अच्छा ठीक बना है, साइंटिफिकली ठीक है, रेगुलेशंस फॉलो हुई थी, हमारी एडवाइस को आपने ढंग से लिया, you have not violated any rules etc. Then this approval comes mainly for the GEAC, but these two committees are also there. And एक बार आपने अप्रूवल कर दिया, अब जैसे बीटी कॉटन अप्रूव हो गया, नाउ इट इज गोइंग टू बी प्लांटेड. अब प्लांट होगा तो वहां पर भी तो मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि यार प्लांट कर दिया है, क्या यहां पर कोई इशू तो नहीं आ रहा, क्या प्लांटिंग अब उसी चीज के बेसिस पे हो रही है जिसका अप्रूवल किया था. ये ऐसा तो नहीं है कि बीटी कॉटन का अप्रूवल लिया था, प्लांट कर रहे हैं बीटी ब्रिंजल. दैट मॉनिटरिंग हैपेंस एट द स्टेट लेवल
by the state biotechnology coordination committee and the district level committee. इन दोनों के बेसिस पे फाइनली मॉनिटरिंग होती है. The head of this district level committee is a IS, the district magistrate of the district, and this is why it is important for you to learn biotechnology. Right? आपकी ये अंडरस्टैंडिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है because you might have to play this role in the future. So everything that is added in the syllabus, there is some logic behind it. Up. These are the rules of these committees. The roles of these committees. मैं इसको repeat नहीं करूंगा. Right? Just have to read them once. कुछ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट GEAC है. बाकी आप इसको एक बार रीड कर चुके होंगे. I don't think I have to read them out with you. It's pretty clearly mentioned कि इन committees के क्या rules हैं. Now, this is the most important committee, GEAC. ये हमें पढ़नी है डिटेल में. इसके भी रोल यहाँ पे मेंशन है. I don't think there is something that I need to teach you here. It is the most important committee. It is the one that administers the 1989 rules, and it is chaired by a special secretary or additional secretary of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Right? ये main committee है जो इसके लिए responsible है. Since the name is committee, it is chaired by a secretary who is an IS. Okay. Now, exemption के लिए क्या बात है? कई बार the ministry can grant exemption to certain genetically modified organisms from the provisions of the rules. Right? तो कभी-कभी एक exemption मिल सकता है आपको from the ministry कि आप इन rules के beyond भी जाके काम कर सकते हो या आपको यहां से approval लेने की जरूरत नहीं है. These are fine. ये मिला है अभी to something called SDN1 and SDN2. This was in the news. Site directed nucleus 1 and site directed nucleus 2. काफी conceptual चीज है. तो we'll come back to this and read it tomorrow. We'll come back to this and read it tomorrow. कि SDN1, SDN2 क्या करते हैं. Now, another thing that might be asked in the MCQs to confuse you is which is the ministry responsible. मान लीजिए मैं आपसे MCQ पूछता हूँ. Which is the ministry responsible for regulation of GM crops? And आपको ऑप्शंस मिले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. तो क्या आंसर दोगे? व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? Answer is of course all of them. It is all of them. जो लोग A बोल रहे हैं उन्होंने शायद स्लाइड्स नहीं पढ़ी अच्छे से. This is the role of the various ministries that is written here. मैंने आपको कहा था ये स्लाइड्स पढ़ने के लिए, मैं आप बता देता हूँ. हर मिनिस्ट्री का कुछ कुछ रोल है. जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इज द प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री. सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबल है. बट देखो यार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कोई तो रोल होगा ही कि अच्छा यार जीएम क्रॉप्स का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देख रही है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या देख रही है कि जब हम लोगों के साथ ट्रेड करते हैं, व्हेन वी आर ट्रेडिंग विद सम फॉरेन पावर, देन शुड वी अलाउ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ जीएम क्रॉप्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देख रही है. देन व्हाट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसिंग कि यार इन पे जो टैक्स लगना है, टैरिफ लगना है, क्या वो टैरिफ ढंग से कलेक्ट हो रहा है? इवन दैट इज टेक्निकली some or the other regulation around GM crops. So Ministry of Finance is also involved. जब इनकी प्लांटिंग होगी, इनकी रिसर्च होगी, इनको एग्रीकल्चर में यूज किया जाएगा, Ministry of Agriculture will also be involved. And when we come to the research part, the core research part, some responsibility will also be there with the Department of Biotechnology, and Department of Biotechnology falls under Ministry of Science and Tech. तो ये सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है. तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है. ऐसे क्वेश्चन में ये नहीं सोचना है कि यार मेरे को तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ा था, सिर्फ इसलिए लिखा है यहाँ पे. यू डोंट नीड टू रीड दीस. याद भी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है. बट यू शुड नो एंड यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन दैट देयर आर वेरियस अदर मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व्ड एज वेल. ओके, सो व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया? करंट स्टेटस, बीटी कॉटन इज द ओनली क्रॉप दैट इज अलाउड. केवल एक बीटी कॉटन एट दिस स्टेज अलाउड है. बीटी ब्रिंजल नाम का एक क्रॉप था
ये आया था, इसे GEAC ने अप्रूव कर दिया था, इसके फील्ड ट्रायल्स भी होने लगे, बट उन ट्रायल्स के रिजल्ट ठीक नहीं आए, सो द मिनिस्ट्री रिजेक्टेड इट। GM मस्टर्ड, एज यू नो, केस इज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच ने स्प्लिट वर्डिक्ट दी थी, नाउ इट हैज गॉन टू अ 3 जज बेंच चेयर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इस बेंच की जो वर्डिक्ट आएगी, यहां पर तो स्प्लिट हो नहीं सकती, इस पे डिपेंड करता है। सो मस्टर्ड ऑल्सो करंटली इज नॉट अप्रूव्ड। GM रबर, इसके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, फाइनल अप्रूवल हैज नॉट कम। एंड GM soy meal, soy meal is basically जो, it is a meal that is fed to animals. Soy meal is not something we eat directly. Soy meal will be fed to, let's say, a chicken, and then chicken will be eaten by humans. इसका import allow कर दिया है. So import of GM soy meal is allowed in India as of this moment. Okay. So only crop allowed for cultivation, which is a GM crop, is BT cotton. Everything else is not allowed yet. Import of soy meal is allowed, and this is not directly for human consumption. This is for animal consumption. However, we might be consuming those animals in the future. Okay. तो ये सारी बातें हैं. Again, this is important from the mains point of view. BT cotton में थोड़े से issues फिर से आने लगे हैं. So we allowed BT cotton in India. अब BT cotton में कुछ issues आ गए. क्या issues आ गए उनकी बात करते हैं. So we thought that BT cotton is a great idea. कोई दिक्कत नहीं है, BT cotton बढ़िया चलेगा. But new pest was discovered called white fly. तो white fly इसको अटैक करने लग गया. Even after having this BT gene, bollworm से प्रॉब्लम नहीं आई, बट white fly से प्रॉब्लम आने लग गई. So this was one issue. BT ब्रिंजल तो मैंने आपको बताया कि उसके काफी साइड इफेक्ट्स आने लगे थे, तो उसे अलाउ नहीं किया. एक इशू आया पेस्ट रेजिस्टेंस का. This issue we are going to study in detail because it will help us understand antibiotic resistance when we read health on Saturday. हम सैटरडे को हेल्थ पढ़ेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे. उस चीज को समझने में भी ये हमें बहुत हेल्प करेगा. Imagine this is a BT cotton plant. ये एक BT cotton plant है and it has the ability to stop bollworms from eating it. Why can it stop bollworms? Because इसके अंदर of course BT gene है. यहां से एक टॉक्सिन बनता है and this toxin must be doing some reaction in the bollworm and उस रिएक्शन के बाद bollworm dies. यही हो रहा होगा. Now the issue here is that there is a possibility कि मान लो there are 5 bollworms, 1 2 3 4 5, ये 5 bollworm है. इन पांचों का अपना कुछ डीएनए है, ये भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनका अपना डीएनए है, अपनी जीन्स हैं, जीन्स इनका आरएनए बनाएंगी, प्रोटीन बनाएंगी. सो इट वाज थॉट कि यार व्हाट इफ दिस वन बॉलवर्म गेट्स सम म्यूटेशन. बॉलवर्म की कोई म्यूटेशन हो जाती है एंड इट समहाउ बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन होगी तो क्या होगा, हमने सिकल सेल एनीमिया में याद करो, कुछ डीएनए सीक्वेंस में चेंज होगा, सम चेंज इन डीएनए विल हैपन, बिकॉज ऑफ दिस change in RNA will happen, because of this a different enzyme will be made. What if because of this mutation it is able to generate an enzyme that can stop this reaction? हो सकता है, पॉसिबल है कि यार एक बॉलवर्म में ऐसी कोई म्यूटेशन हो गई, उसका डीएनए चेंज हो गया, डीएनए चेंज हुआ तो उसने एक नया एंजाइम बना लिया जिससे वो इस रिएक्शन को रोक सकता है. अगर उसने इस रिएक्शन को रोक लिया, नाउ दिस बॉलवर्म कैन गो एंड ईट दिस कॉटन प्लांट. अब तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, ये जाके कॉटन प्लांट को खा सकता है. नाउ व्हाट विल हैपन ओवर टाइम इज दैट दिस बॉलवर्म विल सर्वाइव, ऑल अदर 4 विल डाई. ये लोग कॉटन खाएंगे, ये चारों मर जाएंगे, ये बॉलवर्म सर्वाइव कर जाएगा. नाउ इट विल रिप्रोड्यूस, इट विल हैव 2 बॉलवर्म्स, यहां से 4 बनेंगे. अब ये जो 2 4 8 बनेंगे, इन सब के पास अपने इस एक पेरेंट का डीएनए होगा, तो इन सब के पास ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होगी एंड इवेंचुअली आपका ये बीटी कॉटन यूज करना यूजलेस हो गया. बिकॉज इन नेचर देयर इज सम चेंज और म्यूटेशन. बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन दिस bollworm now has developed resistance and now the entire population of bollworms has resistance and they can go and eat the BT cotton. That is the idea, right? So this was the issue of pest resistance.
नो यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब हम हेल्थ में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, सिमिलर थिंग इज हैपनिंग देयर. ठीक है, ऑलराइट. अब now this is again some information about GM plants, very simple, you just have to read it, nothing for me to explain. ये bollworm और this is the photo of GM cotton and bollworm. Now this again is something that we will study later because again definitions only. I hope, मतलब I assume कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ लिया है, इसलिए I am just going through it quickly. कि what is the difference between genome editing, genetic modification and transgenesis? We'll come back to this slide tomorrow. After reading tomorrow's class, this will not be a problem. Again, GM soy meal ka import was allowed. Again, read this carefully. The GEAC was bypassed, as like I told you, exemptions can be given. So MOEFCC gave exemption on the basis of final product being non-living. Right? Soy meal is a leftover raw material after extracting oil from soybean seed. So what happened was, this is soybean seed. ये सोयाबीन सीड है, इससे आपने ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया, सोयाबीन ऑयल, तो जो लेफ्ट ओवर रह गया, दिस इज सोय मील. नाउ व्हाट इफ दिस सोयाबीन इटसेल्फ वाज जेनेटिकली मॉडिफाइड? सो द सोय मील इज आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है. दिस इज नॉट समथिंग दैट ह्यूमंस ईट बट गिवन टू एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि ये क्रॉप नहीं है, प्लांट नहीं है, उसका एक बाय प्रोडक्ट है, वो भी एक नॉन लिविंग चीज है. क्योंकि नॉन लिविंग चीज है, मिनिस्ट्री ने कहा जीईएसी से अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर लो. दैट इज हाउ वी अलाउड द इंपोर्ट ऑफ जीएम सोय मील. सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट है, ये जीएम रबर. नाउ व्हाट इज दिस? अगर मैं रबर को देखूं, इफ आई लुक एट रबर, वेयर इज रबर ग्रोन इन द वर्ल्ड? थोड़ा बताओ, रबर वर्ल्ड में कहां कहां ग्रो होता है? रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर रबर इज ग्रोन. वेरी गुड मयूर, टफ क्वेश्चन पूछा तो कम लोगों का आंसर आया. रीजन, नॉट कंट्री नेम, रीजन. Rubber is generally grown in tropical regions. Tropical regions, why? Because rubber is a type of plant that requires hot weather throughout the year. Rubber plant cannot tolerate cold weather. ज़्यादा cold weather होगा तो rubber plant will die. So it is generally grown in tropical regions of the world. तो जो आपने countries के नाम लिए वो सही लिए. Grown in countries like Brazil, in countries of Southeast Asia. So that's fine, but आपको region भी याद होना चाहिए कि हाँ, tropical region, equatorial region में grow होता है. And even in equatorial region, the countries that you remembered, great. Now we want to grow rubber in, let's say, Assam. If we grow rubber in the northeast, northeast already has a lot of biodiversity. Second, there will be employment generation there. It is easier to connect with Southeast Asia, which is hub of rubber. From the northeast, we have a policy of act east through northeast also. तो अगर हम आसाम में ग्रो करेंगे तो it will be a decent idea to have rubber there. Now, what is the potential problem here? The problem here is that Assam will have cold winters, and in cold winters rubber will not survive. तो हमने क्या कहा? हमने कहा यार हम रबर की जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देते हैं एंड लेट मी इंट्रोड्यूस अ न्यू जीन इन रबर. मैं एक नया जीन इंट्रोड्यूस कर देता हूं इन रबर. Once I introduce this new gene in rubber, this rubber with this new gene, which is a new part of DNA, it will start making some new RNA and it will start making some new enzyme. Rubber will now start making this new enzyme called manganese superoxide dismutase, MnSOD. एंजाइम का नाम याद करना जरूरी नहीं है. You can broadly just remember MnSOD जैसा कुछ थोड़ा बहुत याद कर लो.
एग्जैक्ट एंजाइम का नाम कोई नहीं पूछेगा. सो मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज. दिस MnSOD gives the rubber the ability to tolerate cold winters. तो कोल्ड विंटर आएगी भी तो भी रबर उसको टॉलरेट कर लेगा. Now a rubber plant having this enzyme can be grown in non-tropical regions of the world also. So this was the idea that in GM rubber we are going to have, this is the world's first GM rubber. We have planted it in Assam. The idea is that manganese containing superoxide dismutase, this enzyme will be there and it will help the plant tide over the cold conditions of winter. तो winter की conditions ये tolerate कर लेता है. Now since in this development, it is the world's first GM rubber, there can be a question on it. Why was it introduced? For cold conditions. Where is India using it? In Assam. And who developed it? It was a Kerala based rubber research institute. तो केरला में भी रबर ग्रो होता है. Okay. Now, natural rubber grows mostly in the Amazon rainforest in Brazil. यहाँ पर cold season है ही नहीं. Hot and humid climate है तो बढ़िया ग्रो करता है. But this is a potential solution to this problem. तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है. Please mark this as important. Now, again, some other developments. This might be very important this year, right? इस पे मैं अभी आता हूं RST 14 एंड RST 18 पे. फूड इंपोर्ट्स की बात कर लेते हैं कि अगर मान लो मुझे कोई GM ह्यूमन फूड इंपोर्ट करना है, ह्यूमन फूड, नॉट द जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड फॉर एनिमल कंजम्पशन. जैसे मैंने सोय मील देखा, सोय मील की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राइट, नॉट विद रिगार्ड्स टू सोय मील, बट what about if I want to import something that humans are going to eat? अगर मुझे ह्यूमन फूड इंपोर्ट करना है तो उसकी जो रेगुलेशन है वो कैसी है? पहले उसको एनवायरमेंटल एंगल से क्लियरेंस चाहिए कि यार इसकी जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है वो एनवायरमेंटली क्लियर है. दिस विल बी डन बाय GEAC, देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट. देन आई नीड अ क्लियरेंस फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस विल बी डन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. यहां पर तो बस ये बात लिखी है, ठीक है. अब ये वीट वाली बात समझते हैं. अभी दिल्ली में AQI स्पाइक हुआ है, अभी चल ही रहा है. वन ऑफ द मेन रीजंस अदर देन ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, इज आल्सो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग. आपको सबको पता होगा पराली जलाते हैं, इसीलिए वो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग होती है. एंड सिंस दिल्ली इज लाइक अ ज्योग्राफिकल सेंटर एंड द विंड्स कम इन फ्रॉम द वेस्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं, दैट कैरी ऑल द विंड्स ओवर दिल्ली. और दिल्ली बिल्कुल सेंटर में है, उसके आसपास हर जगह हाई एलिवेशन है. आप दिल्ली के ऊपर देखो तो हिमालयास हैं, नीचे देयर इज द प्लेटो रीजन, राइट. सो दिल्ली इज लाइक दिस, यहाँ पे हिमालयास, यहाँ पे प्लेटो, राइट. यहाँ पर पराली जल रही है एंड यहाँ से विंड्स आ रही हैं. सो एवरीथिंग गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड हियर, राइट. एंड दिल्ली इज ऑल्सो सराउंडेड बाय एग्रीकल्चरल स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एक्सेट्रा. सो दिस इज व्हाई द प्रॉब्लम इन दिल्ली इज देयर. अब पहले समझते हैं कि क्रॉप रेजिड्यू फार्मर्स जलाते क्यों हैं. दिस इज समथिंग वी वर गोइंग टू रीड इन एनवायरमेंट, बट आई थिंक वी कैन डिस्कस इट हियर. एनवायरमेंट में हमारा टाइम बच जाएगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड पंजाब सब सॉइल कंजर्वेशन ऑफ वाटर एक्ट. पंजाब सब सॉइल कंजर्वेशन ऑफ वाटर एक्ट क्या बोलता है? वो कहता है यार दैट इन द मंथ ऑफ मे, in the month of May, water demand in Punjab is very high. Water demand is high in households also and in agriculture also. तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि यार ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर से ही वाटर विल गो टू द हाउसहोल्ड्स एंड ग्राउंड वाटर से ही वाटर इज गोइंग टू गो टू द एग्रीकल्चरल फील्ड्स. Just giving you one example from Punjab, बाकी states में भी issues हैं, इस example से हम समझ लेंगे. Now they said that in May, because of the hot weather, water demand is very high in the households. So they said that we will give a regulation to the farmers to not do any planting in May. आप May में plant मत करो, don't plant in May, so that
already groundwater is depleted. This groundwater should not go in two directions. एग्रीकल्चरल डिमांड भी मई में ज्यादा होगी और हाउस होल्ड डिमांड भी ज्यादा होगी, तो ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीट हो जाएगा. सो लेट मी नॉट हैव दिस ह्यूज डिमांड एट दिस टाइम. इस टाइम पे नहीं रखते. लेट मी पुट इट फॉरवर्ड. तो फार्मर्स ने कहा ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू प्लांट इन में, वाटर शुड बी अवेलेबल टू हाउस होल्ड, ग्राउंड वाटर ऑलरेडी कम है. सो दे स्टार्टेड प्लांटिंग इन जून. राइट, अब समझना है इस बात को. नॉर्मली व्हाट वाज द प्लांटिंग साइकिल? प्लांटिंग साइकिल था कि मैं मई में पहला क्रॉप प्लांट करूंगा. राइट, आई विल ग्रो दिस क्रॉप फॉर 3-4 months. Then in the month of October, I am going to harvest this crop. Once I harvest this crop, now I am going to, in the month of November, going to plant the new crop. यहाँ पे रबी क्रॉप प्लांट करूंगा, न्यू क्रॉप यहाँ पे प्लांट करूंगा. This was the idea, normal idea that the farmers had earlier. अब हार्वेस्टिंग की प्रोसेस को थोड़ा सा देखते हैं. मान लो ये आपका एक, दिस इज द सॉइल, दिस इज अ प्लांट, ऐसे प्लांट है, और ये लेट्स से राइस प्लांट है. दिस इज अ राइस प्लांट. ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल, दिस राइस प्लांट आपने प्लांट कर दिया, बड़ा हो गया. नाउ यू हैव टू हार्वेस्ट इट. इफ यू आर गोइंग टू हार्वेस्ट इट, आप हाथ से तो बाहर निकालोगे नहीं. यू जस्ट नीड द राइस सीड्स दैट आर हियर on this plant. So there is a combined harvester and thresher machine से अब हार्वेस्टिंग होती है. पहले क्या होता था, लोग हाथ से करते थे, सिकल लेके हाथ से काटते थे. Now it is happening through machines. So what does that machine do? That machine, you run it, आपने देखा होगा, farmers are riding it ऐसे सामने. I'll just show you a picture of a harvester. Maybe it will become clearer. One second. इस टाइप की मशीन, दिस आई एम श्योर यू हैव सीन दिस बिफोर. सम मशीन लाइक दिस, ये मशीन. ठीक है, अब इस मशीन को देखो, व्हाट इज इट डूइंग? इट इज गोइंग टू हार्वेस्ट द क्रॉप. जब ये क्रॉप को हार्वेस्ट करती है तो क्या होता है? इट इज गोइंग टू कट द क्रॉप फ्रॉम हियर. यहां से क्रॉप को कट करेगा. व्हेन इट कट्स द क्रॉप फ्रॉम हियर, व्हाट हैपेंस इज दैट सम पार्ट ऑफ द क्रॉप, आफ्टर दिस कटिंग हैपेंस, सम क्रॉप इज लेफ्ट इन द ग्राउंड. अब आप हाथ से नहीं निकाल रहे हो, तो आफ्टर दिस कट यू विल हैव समथिंग लाइक दिस इन द ग्राउंड. ऐसा रह जाएगा. अब हार्वेस्टिंग हो गई. पहले जो फार्मर था उसके पास टाइम था 1 महीने का. दे हैड द टाइम ऑफ 1 month. तो अक्टूबर में ऐसी सिचुएशन है, तो अब इनके पास 1 month टाइम था. इस 1 month में दे कुड टेक आउट दिस. अब इस पे तो आप नया क्रॉप नहीं प्लांट कर सकते. आपने अपने फील्ड पे लेट्स से व्हीट प्लांट किया, राइट, या राइस प्लांट किया. राइस को आपने हार्वेस्ट कर लिया. अब ये इतना आपके फील्ड पे पड़ी है ऐसे. दिस इज लेफ्ट इन योर फील्ड नाउ. इफ दिस इज लेफ्ट इन योर फील्ड, व्हाट डू यू डू नाउ? यू नाउ वांट टू टेक दिस आउट बिफोर यू हैव टू प्लांट द नेक्स्ट क्रॉप. नेक्स्ट क्रॉप प्लांट करने से पहले आपको इसको निकालना पड़ेगा. सो अर्लियर द फार्मर हैड दिस ऑप्शन दैट यू हैव 1 month, आराम से इनको निकाल लो and you can now plant the next crop. Okay, it was an easy option. Punjab government said you cannot plant in May because there is a groundwater problem. So you plant in June. अब इसी साइकिल में अगर आप जून में प्लांट करने लग गए तो आपकी हार्वेस्टिंग होगी ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड में, एंड नवंबर मिड से आपको न्यू क्रॉप चाहिए. नाउ यू हैव मियरली 5 to 10 days. अगर आपने अगले क्रॉप को नवंबर में प्लांट नहीं किया तो उसकी यील्ड अच्छी नहीं आएगी. So earlier you were planting first crop in May, harvesting in October. You had complete October to remove these, leftover stubble, and then you could plant in November. Now that you are planting in June, there is no time left to remove this leftover stubble. Since there is no time left to remove this leftover stubble, what will you do? You will say, my only option is to burn it.
This is why stubble burning is something that does not stop. Because the issue really is not about stubble. It is not about farmer behavior. The issue is groundwater depletion. The problem is emanating from somewhere else. It is not coming from all of this. The solution lies in groundwater. Now, once this problem started, this problem was understood, it was seen कि यार दिल्ली का AQI खराब हो रहा है, we figured out that let us now try to solve this problem. Let us see what various fixes government came up with for this problem. Firstly, they said, this is very well documented, that you have less time to remove this stubble. So let me create a solution, ये भी हम पढ़ेंगे environment में, that has a combination of various fungi in it. एक solution बनाया था, 7 fungus का solution था. Rather than burning the stubble, आप इस solution को यहाँ पे spray कर दो. You spray this solution here. इससे ये stubble यहीं पर absorb हो जाएगा. जब ये यहीं पर absorb हो जाएगा, तो इससे soil की कार्बन कंटेंट भी बढ़ेगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, एंड दिस दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. आपको जलाना नहीं पड़ेगा, राइट? दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन. समझ आ रहा है अभी तक जो बात कर रहे हैं हम? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग? This solution was called, it was made by the Indian Agriculture Research Institute, and it was called Pusa Biodecomposer. Second issue. Second solution that they came up with was, कि यार ठीक है, तुम्हें solution नहीं लगाना, why don't you come up with a different type of seeding technique for rice? अभी आप राइस में क्या करते हो कि पहले इनको निकालते हो, फिर आप प्लांटेशंस तैयार करते हो, फिर राइस लगाते हो, या फिर वीट में आप इसको निकालते हो, फिर वीट प्लांट करते हो. व्हाट इफ वी कुड कम अप विद डायरेक्ट सीडर मशीन्स, डायरेक्ट सीडर और हैप्पी सीडर. उसका भी काम यही था कि डायरेक्ट और हैप्पी सीडर यूज करके डायरेक्टली सीड कर देते हैं, राइट? लेट मी डायरेक्टली पुट, किसी ऐसा निकला हुआ स्टबल आपके क्रॉप में, यू कैन कम एंड डायरेक्टली पुट द सीड इनसाइड. ये एक सोल्यूशन निकाला गया. थर्ड सोल्यूशन दैट दे पॉसिबली थॉट ऑफ वाज अ बायोटेक्नोलॉजी सोल्यूशन. उन्होंने कहा कि यार देखो, मशीन ने तो वहीं से काटना है प्लांट को. अगर ऐसा प्लांट है, इतना बड़ा प्लांट है, तो मशीन यहां से काटेगी. लेकिन अगर प्लांट हो ही, इफ प्लांट इज नॉट दिस बिग इन हाइट, प्लांट हो ही इतना, तो मशीन यहां से काट देगी. प्लांट की हाइट उतनी होनी ही नहीं चाहिए कि उसमें कुछ लेफ्ट ओवर बचे. मशीन कैन लेट से कट 10 सेंटीमीटर्स. यू लेट ओनली 10 सेंटीमीटर्स ऑफ प्लांट अबव द ग्राउंड. सिर्फ 10 सेंटीमीटर का ही प्लांट अबव द ग्राउंड छोड़ते हैं. मशीन 10 सेंटीमीटर काट सकती है. You have a 15 सेंटीमीटर प्लांट, तो 5 सेंटीमीटर तो रह जाएगा. But if the plant is only 10 centimeters above the ground, machine will cut all of it and problem will be solved. Now, why can you not have a 10 centimeter plant? You cannot have a 10 centimeter plant because इसके लिए normally मैं seed को यहां plant करता हूं. I plant the seed here. I plant the wheat seed here. ठीक है, वीट सीड को यहां प्लांट करता हूं. ये ऐसे ग्रो होता है, राइट? इट ग्रोज दिस मच एंड देन इट बिकम्स लाइक दिस. इफ आई प्लांट द वीट सीड डीपर, मैं यहां प्लांट कर दूं अगर सीड को, तो इट विल ग्रो एंड ओनली बिकम दिस बिग. अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं यहां पे सीड को प्लांट कर रहा हूं, प्लांट में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इतनी लेंथ सॉइल के अंदर ग्रो कर ले. इट्स इजी फॉर द प्लांट टू ग्रो आउटसाइड द सॉइल. प्लांट के लिए सॉइल के अंदर ग्रो करना बहुत मुश्किल है. इनसाइड द सॉइल देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. सो आई नीड अ प्लांट दैट हैज मोर विगर एंड मोर स्ट्रेंथ so that it can grow from inside the soil.
If it starts growing from inside the soil, it will reach only to 10 centimeter. This was the next solution produced. Let's have shorter varieties of wheat. This was one of the other solutions that was proposed. एक और solution जो propose किया गया वो ये था कि ये जो stubble बचता है, let me incentivize the farmer that if they can collect this stubble and give them to me, I will make briquettes of biochar. मैं इनसे biofuel बना दूंगा. And this biofuel can be used for energy. तो मैं farmers को incentivize करता हूं. None of which, unfortunately, solves the core problem, because of which this entire issue has come. Right? But these are the fixes. ये हमें environment में पढ़ना था, but now that we were discussing it here, we are reading it here. आप यहाँ देखो, Agharkar Research Institute under Department of Science and Technology has mapped 2 genes in wheat called RST14 and RST18. इन्होंने क्या किया है? इन्होंने wheat को स्टडी करके 2 जीन्स निकाली हैं, RST14 and RST18. These lead to better seedling vigor. Seed की strength of growing उसको बढ़ाती हैं. और longer coleoptiles. Coleoptiles is basically not important. It is basically something that allows, जैसे ये seed है, यहाँ से निकलता है plant. Coleoptile is something that covers the initial part. अगर coleoptile ज्यादा बड़ा होगा तो वो seed आप और deep plant कर सकते हो. Basically it allows deeper planting of wheat and can reduce crop residue burning. This was the solution that they came up with. Again, RST14 और RST18 को समझा और इन जीन्स को अब wheat में डाल के GM wheat बना के ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है potentially. This was the idea that they came up with. So I hope this entire gamut of things is covered and now I don't have to teach this in environment. I hope सब समझ आ गया. Are all the issues now getting connected properly? कोई कह रहा था डायरेक्ट सीडर में भी बर्निंग करनी पड़ेगी. नहीं, डायरेक्ट सीडर में टेक्नोलॉजी ऐसे होती है, डायरेक्ट सीडर में टेक्नोलॉजी ऐसे होती है दैट इट एक्चुअली इज एबल टू क्रश दिस वाइल सीडिंग. इसको वो क्रश कर देता है वाइल सीडिंग. ठीक है. नाउ SDN1 एंड SDN2, दीज आर 2 एंजाइम्स. अभी बस ये याद कर लो कि SDN1 और SDN2 को हमने exempt कर दिया है. They have been exempted from 1989 rules. What are SDN1 and SDN2? We will study tomorrow. ठीक है. अब now we have to understand this various applications of biotechnology continued. अब इन applications पे question आते हैं. For example, here as you can see, this is red biotechnology in health. There is monoclonal antibodies, DNA probes, ELISA में monoclonal antibodies यूज होती हैं, all of these things. तो इन चीजों पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, तो we will study all of them. राइट. यहाँ स्टेम सेल्स लिखा है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स लिखा है, जीन थेरेपी लिखा है, DNA probes लिखा है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ELISA, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, वैक्सीन्स. नाउ वी हैव टू स्टडी ऑल ऑफ देम. ये सिर्फ हेल्थ के हैं. ब्लू बायोटेक्नोलॉजी इज फॉर एक्वाकल्चर, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी इज फॉर एग्रीकल्चर. So this is all something that we have to read and this is something that we will study in detail. जैसे DNA barcoding पे क्वेश्चन आया था, it is an application of environmental biotechnology. There is also forensic biotechnology where we try and understand DNA fingerprinting. तो अब हम ये पढ़ेंगे, राइट. इसके साथ हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉल्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. And I don't think the slides for Human Genome Project are here, but don't worry, we'll talk about it. ठीक है. It will take, we have to now read the Human Genome Project broadly कि क्या बात हुई इसमें, Human Genome की क्या applications है. DNA barcoding we will study, DNA fingerprinting we will study, and we will also study, if possible, we will also study gene therapy a little bit. ये करने के बाद I will be ending today's class.
it's getting a bit difficult for me to continue speaking. And tomorrow we will have a long class. Tomorrow please be prepared. ठीक है, थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है यार कल. If I just saw a message that you have multiple classes, maybe आपकी कोई और क्लास भी है, तो आप उनमें से कोई एक रिकॉर्डेड देख लो. इन जनरल should not be watching more than 2 classes in a day. You can watch one of them recorded. Just need to keep the discipline for that. ठीक है, तो कल थोड़ी लंबी क्लास होगी. कल उसके लिए प्लीज मैं पहले से ही आपको वार्न कर रहा हूँ, बी प्रिपेयर्ड. राइट, तो अभी आई एम जस्ट टेकिंग अ 5 minute break, just take some medicine also, and we will then continue and read these technologies. Basic understanding of Human Genome Project, what is DNA barcoding, what is DNA fingerprinting. DNA fingerprinting is very interesting, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे. We'll understand all of these technologies, and then we will if time permits, we will also read gene therapy. Okay, just let's take a break for 5 minutes and continue after that.
All right. All right. So guys, there was something that was done in 2001 called the Human Genome Project. अभी बस ये सुन लो. The concept is important. The concept is important. To understand the concept, we have to understand this, right? We did something called Human Genome Project in 2001. कल इसको डिटेल में देखेंगे. अभी I just want कि जो conceptual explanation है वो आपको समझ आ जाए. So in the Human Genome Project, what did we do? We said that जो पूरा human genome है, जो complete human DNA है, genome means complete DNA. We will take a look at this complete DNA. हम ये पूरा DNA देखेंगे और इस पूरे DNA को सीक्वेंस करेंगे. We will sequence this complete DNA. तो कुछ सैंपल DNA लिया गया, mainly from Europeans it was taken, not from Indians. And we said that we are going to sequence this entire DNA. पूरे humans का पूरा DNA हम सीक्वेंस करेंगे, पूरी सीक्वेंस निकालेंगे. A, T, G, C कहाँ पे क्या लोकेटेड है, इस पूरी लेंथ में we will find it out. तो जब obviously ये काफी बड़ा टास्क था, because there are many base pair. हमने देखा है कि billions में base pair हैं in humans, and because the base pairs are in billions, of course this was a huge task. This was started in the 1990s, completed in 2001, and we finally got a reference human genome. हमने पूरी human DNA को ऐसे काउंट करके हमें पता चला कि यार this is how it actually works. Okay. Now इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट था that 99.9% of DNA in all humans is the same. 99.9% DNA in all humans is the same. Only 0.1% DNA is the one that gives variations. यही वो जगह है जहां पर वेरिएशंस हैं. आपको लग रहा होगा यार 0.1% तो बहुत छोटा नंबर है, बट इफ यू थिंक अबाउट इट दैट वी हैव बिलियंस ऑफ बेस पेयर्स, 1 बिलियन बेस पेयर्स हैं, तो 0.1% इज आल्सो 1 मिलियन. तो 1 मिलियन भी काफी बड़ा नंबर होता है. वी हैव सम अलग अलग एस्टिमेट्स हैं. वी हैव 3 into 10⁹ बेस पेयर्स. व्हाट इज अ बेस पेयर हम पढ़ चुके हैं. A and T together is one base pair. G and C together, this is one base pair, this is one base pair. So because we have billions of base pairs, even 0.1% is a huge number, but this is the only number that was giving variations in humans, right? अब इससे कई important conclusions were found out. The first important conclusion was there cannot be any racial differences. This was a complete conclusive end to the idea of races in humans. पहले ये आइडिया था, स्पेशली 1950s-60s में, कि देखो जो अफ्रीकन अमेरिकन रेस के लोग हैं या एशियन रेस के लोग हैं या कॉकेशियन व्हाइट रेस के लोग हैं, इनके रेशियल कैरेक्टर्स अलग हैं. इस रेस के लोग इस टाइप के होते हैं, इस रेस के लोग इस टाइप के होते हैं, इस रेस के लोग इस टाइप के होते हैं. बट व्हेन इट वाज फाउंड आउट दैट 99.9% डीएनए इज सिमिलर, देन इट वाज अंडरस्टूड कि यार ये जो 0.1% है, इसमें तो इतनी वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं है कि अलग अलग रेसेस बन जाएं. So it was then understood that races, at least biologically speaking in humans, do not exist. Racism is a myth. It is a myth when speaking scientifically. It is a social concept. Racism जो होता है वो क्या होता है कि लोग अपने रेस पे डिफरेंशिएट करते हैं. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने वर्ड रेस यूज किया हुआ है, राइट? बट एक्चुअली ट्रू रेसेस कैन नॉट एग्जिस्ट विद सच लो वेरिएशन, विद सच लो अमाउंट ऑफ डिफरेंस. एक अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन और एक व्हाइट पर्सन के डीएनए में इतना फर्क ही नहीं है कि आप उनको अलग रेस में क्लासिफाई कर सको. मे बी स्किन कलर में डिफरेंस है, राइट? दैट कैन बी वन थिंग दैट यू कैन डिफरेंशिएट. बट रेशियल डिफरेंस की बात करना, ये बोलना कि ये रेस अलग है, अफ्रीकन अमेरिकन अलग हैं और कॉकेशियंस अलग हैं, वुड मीन दैट दे हैव कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. इनके डीएनए अलग हैं, इनके डीएनए अलग हैं. पहले ऐसे बहुत बार होती थी कि यार ये तो प्योर ब्लड लाइन है, व्हाइट्स की जीन्स तो बहुत बेटर हैं, etc. These were the myths that were propounded by these European colonizers. After Human Genome Project was concluded, this entire myth that white race is superior, white race has better genes,
ये खत्म हो गई बिकॉज वेरिएशन है ही इतनी कम वेरिएशन है कि आप बात कर ही नहीं सकते ऑफ सच डिफरेंसेस। ओके, तो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर लिया, व्हेन वी अंडरस्टूड द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड वी वर एबल टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए, फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए स्टार्टेड टू बी अंडरस्टूड। तब डीएनए में एक बात समझ आई कि यार हमारे डीएनए में कई जगह सीक्वेंसेस हैं कॉल्ड टैंडेम रिपीट्स। हमने देखा है कि डीएनए जो है, देयर इज डीएनए दैट इज कोडिंग, वी हैव डीएनए दैट इज कोडिंग डीएनए एंड डीएनए दैट इज नॉन कोडिंग डीएनए। हमने ये दोनों चीजें देखी हैं। तो ये जो नॉन कोडिंग डीएनए है, इसमें थोड़ा सा पार्ट है कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। इसको कल और डिटेल में देखेंगे। इसमें एक पार्ट है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए में ये देखा गया कि देयर आर टैंडम रिपीट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टैंडम? टैंडम मीन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। देखा गया कि ये नॉन कोडिंग पार्ट में सैटेलाइट डीएनए में लोगों के पास किस टाइप की चीजें हैं? इस टाइप की हैं, जैसे ATAG, ये आ रहा है, फिर से आ रहा है ATAG, फिर से आ रहा है ATAG, फिर अगेन आ रहा है ATAG। ऐसे रिपीट्स हैं। एंड बिकॉज दिस इज अ नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए, इसमें बहुत वेरिएशन पॉसिबल है। इसमें बहुत वेरिएशन पॉसिबल है बिकॉज इट इज अ नॉन कोडिंग पार्ट। ह्यूज नंबर ऑफ वेरिएशंस आर पॉसिबल। कोडिंग पार्ट में तो चलो सिमिलैरिटी है कि यार 2 eyes 1 nose 1 mouth 1 chin 2 ears 1 head 1 forehead, ये तो होना है। बट यहां बिकॉज इट इज नॉन कोडिंग पार्ट, यहां पर वेरिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हाउ मेनी रिपीट्स कैन यू काउंट हियर? You can count 4 repeats. It was seen that these number of repeats, not the sequence, repeat तो ATAG ही हो रहा है, but number of repeats is different for each individual. क्योंकि नॉन कोडिंग पार्ट है तो डिफरेंस हो सकता है। कहीं पे 4 बार ये रिपीट हो रहा है, कहीं 5 बार हो रहा है, कहीं 6 बार हो रहा है, कहीं 7 बार हो रहा है। एंड दिस वॉज ह्यूजली डिफरेंट इन वेरियस ह्यूमंस। ठीक है, इसमें बहुत डिफरेंस था। दिस इज कॉल्ड टैंडम रिपीट्स, और रादर मोर एक्यूरेटली कॉल्ड VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। कितने रिपीट्स होंगे? 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, ये बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन मिली। एंड व्हाई वाज दिस वेरिएशन पॉसिबल? बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए, ऑल्सो नोन एज सैटेलाइट डीएनए। राइट, इट इज नॉन कोडिंग डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज एट द कॉर्नर। अगर आप क्रोमोसोम को देखोगे, इफ यू लुक एट द क्रोमोसोम, इस टाइप का क्रोमोसोम होता है। सैटेलाइट डीएनए यहां पर होता है, यहाँ एट द एजेस ऑफ द क्रोमोसोम, इसलिए इसे सैटेलाइट कहते हैं, बिल्कुल एज पे है। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर नॉन कोडिंग पार्ट है, एंड दिस नॉन कोडिंग पार्ट हैज अ नंबर ऑफ वेरिएशंस इन हाउ मेनी रिपीट्स। रिपीट नंबर की वेरिएशन है। तो अगर हम और डिटेल में ह्यूमन जीनोम को देखें तो हमें पता चला कि देखो यार, देयर आर पीपल हु हैव ऑब्वियसली डीएनए फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर, दोनों से डीएनए आएगा। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सो लेट्स दिस इज पेयर नंबर 1। पेयर नंबर 1 में आधा डीएनए, मतलब एक क्रोमोसोम हैज कम फ्रॉम फादर एंड आधा डीएनए 1 क्रोमोसोम हैज कम फ्रॉम द मदर। सबके केस में ऐसा ही होगा। 23 पेयर्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स दिए हैं फादर ने, 23 दिए हैं मदर ने, राइट? तभी 46 बनेंगे। ये हम देख चुके हैं। बोथ विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल्स, स्पर्म एंड एग, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। आधे क्रोमोसोम फादर के हैं, आधे क्रोमोसोम मदर के हैं। ओके, इसमें देखा गया कि नंबर ऑफ रिपीट बहुत डिफरेंट है। जैसे किस टाइप की वेरिएशन होती है कि ये पर्सन है, इनका क्रोमोसोम नंबर 1 है, इनके क्रोमोसोम नंबर 1 पे कितने रिपीट्स हैं भाई? 6 रिपीट्स हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 के दूसरे जो मदर से मिला है उस पे कितने हैं? उस पे 4 हैं। अच्छा, अब नंबर 2 देखो, क्रोमोसोम नंबर 2 देखा, यहां पर 3 हैं, यहां पर 5 हैं। क्रोमोसोम नंबर 3 देखा, यहां पे 7 है, यहां पे 11 है।
and this number is largely varying. This number is very different for everybody because 23 pairs हैं तो बहुत differences हैं, right? ये बात समझ आ रही है? Satellite DNA, because it is present here, it is non-coding and there are repeats और tandem repeats. Tandem मतलब कैसे? ऐसा भी tandem हो सकता है, पहले AAAT रिपीट हो रहा है, फिर से AAAT रिपीट हो रहा है, फिर से AAAT रिपीट हो रहा है, ऐसा रिपीट होते जा रहा है, right? Such repeats are there. What is the number of this repeat is varying in every individual. You are getting half chromosome, one part of the pair from the father, one part of the pair from the mother. तो फादर वाले पे अलग नंबर, मदर वाले पे अलग नंबर, इसलिए सब में बहुत वेरिएशंस हैं. ये बात समझ आई? ठीक है. नाउ इफ these variations are there, ये numbers अगर सब में वेरी कर रहे हैं, I can use these variations to understand कि कौन सा डीएनए किसका है. This is like a fingerprint. सबके फिंगरप्रिंट अलग हैं, सबकी शेप फिंगर्स की अलग है, सेम फिंगर्स हैं सबके पास, बट फिंगरप्रिंट तो सबका अलग होता है. सिमिलरली दिस वाज सीन टू बी लाइक अ फिंगरप्रिंट ऑफ द डीएनए, कि कितनी बार रिपीट हो रहा है आपके क्रोमोसोम्स पे. आपका एक अलग कॉम्बिनेशन है, मेरा एक अलग कॉम्बिनेशन है, किसी और का कोई अलग कॉम्बिनेशन होगा. सो इफ आई कैन सी दिस कॉम्बिनेशन in various people, I will be able to fingerprint their DNA. So this gave rise to something called DNA fingerprinting. This gave rise to something called DNA fingerprinting. The idea was that मान लो मैं एक क्राइम सीन पे गया, I went to a crime scene, और मुझे पता चला इस क्राइम सीन पे यहां पर कुछ डीएनए मिला है. दिस डीएनए इज डेफिनेटली ऑफ द क्रिमिनल. मुझे समझ आ गया इन्वेस्टिगेशन करते हुए कि यार ये क्रिमिनल का डीएनए है, मुझे यहां पे मिल गया है. आई हैव टू सस्पेक्ट्स, लेट्स से सस्पेक्ट नंबर 1 एंड सस्पेक्ट नंबर 2. नाउ आई वांट टू सी कि ये क्रिमिनल डीएनए सस्पेक्ट 1 से मैच हो रहा है तो ये गिल्टी है, इससे मैच हो रहा है तो ये गिल्टी है. अब मैं डीएनए कंपेयर कैसे करूं? 99.9% तो सिमिलर है, 3 बिलियन बेस पेयर हैं, तो या तो मैं इस पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग करूं, ये जो क्रिमिनल डीएनए मिला है क्राइम सीन पे, मैं पहले इसकी पूरी सीक्वेंस पढ़ूं. आई रीड द एंटायर सीक्वेंस, राइट. इसमें 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, 99.9% इनसे भी सिमिलर है, 99.9% इनसे भी सिमिलर है, सिर्फ 0.1% में डिफरेंस है. कितना टाइम लग जाएगा मैथमेटिकली इनको मैच करने में? 0.1% डिफरेंस निकालना है और इससे मैच करना है. दिस वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो हमने कहा यार ये काम नहीं करते. व्हाट वी शुड डू इज वी शुड ट्राई एंड यूज दिस नंबर ऑफ रिपीट्स. तो हमने देखा कि डीएनए में सैटेलाइट डीएनए को सेपरेट करना आसान था. हमने क्या किया, जैसे वहां पे डीएनए मिला, उस डीएनए को निकाला, उसको एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, मिक्सी की तरह मान लो, आपने मिक्सी में मशीन को डाल डीएनए को डाल दिया. जब हम मिक्सी में डीएनए को डाल देते हैं और उसको ऐसे तेज तेज घुमाते हैं तो सैटेलाइट डीएनए अलग से टॉप पे दिखने लगता है, बाकी डीएनए बॉटम पे सेटल हो जाता है. तो मैंने ये वाला डीएनए लिया, सैटेलाइट डीएनए अलग हो गया, बाकी डीएनए को कहते हैं बल्क डीएनए, द रेस्ट इज कॉल्ड बल्क. बल्क यहां रह जाता है और सैटेलाइट डीएनए अपना अलग से ऊपर आ जाता है. तो मैंने देखा यार कि सैटेलाइट डीएनए को सेपरेट करना आसान है. तो मैंने इसका डीएनए लिया जो क्रिमिनल था, जो क्राइम सीन पे मिला है, उसका सैटेलाइट अलग कर लिया, बल्क अलग कर लिया. सिमिलरली मैंने सस्पेक्ट 1 का भी जो डीएनए था, उस डीएनए के साथ भी मैंने सेम चीज करी. आई सेपरेटेड इट, बल्क यहां रह गया, सैटेलाइट यहां रह गया. सेम विद सस्पेक्ट 2, इसके डीएनए को मैंने सेपरेट किया, बल्क यहां रह गया,
और सैटेलाइट यहां रह गया। अब मुझे सिर्फ सैटेलाइट कंपेयर करना है, आई ओनली हैव टू कंपेयर द सैटेलाइट, बल्क तो अलग ही हो गया। तो मेरी जो कंपैरिजन करने की वो थी, मुझे पूरा डीएनए कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आई कैन ओनली कंपेयर द सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए में वेरिएशन बहुत हाई है, सबका नंबर अलग है, तो मैं इसमें एनालाइज करूंगा कि यार कितने रिपीट हो रहे हैं, रिपीट पैटर्न क्या है। इसमें देखूंगा रिपीट पैटर्न क्या है, और इसमें देखूंगा कि रिपीट पैटर्न क्या है। और जब मुझे ये रिपीट पैटर्न कोई सिमिलर मिल जाएगा, मान लो इनका रिपीट पैटर्न और इनका रिपीट पैटर्न सिमिलर है, तो आई कैन मैच कि हाँ यार ये तो डीएनए का फिंगरप्रिंट बन गया, दिस इज द पर्सन हु इज गिल्टी। सो मैचिंग दिस रिपीट पैटर्न गॉट टू बी नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। समझ आ रही है बात? द बैक एंड प्रोसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक इसकी फोटो दिखा देता हूं, तो आई थिंक आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये ऑपरेट करता है। I think there is a photo in your handwritten notes, वो better है। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके प्योरीफाई करते हैं। जो ये शॉर्ट टैंडम रिपीट्स हैं, एसटीआर लिखा है यहाँ पे, एसटीआर यानी कि शॉर्ट टैंडम रिपीट, वीएनटीआर मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, सबके रिपीट नंबर अलग हैं। उन रिपीट नंबर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं और प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। लुक एट दिस केयरफुली, आई कैन चेक द प्रोफाइल कि अच्छा यार ये जो क्राइम सीन पे डीएनए मिला है, क्राइम सीन पे जो डीएनए मिला है उसमें क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे 4 रिपीट्स हैं और 5 रिपीट्स हैं, क्रोमोसोम नंबर 2 पे 3 रिपीट्स हैं और 2 रिपीट्स हैं। फर्स्ट पेयर आई मीन, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर 7 एंड 8। इसकी प्रोफाइल देख ली और सस्पेक्ट की प्रोफाइल देख ली, नंबर ऑफ रिपीट्स मैच कर लिए यूजिंग अ विजुअल प्रोफाइल। इस टाइप की प्रोफाइल बन के आती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो बार्स दिख रहे हैं अलग अलग। इफ यू आर एबल टू मैच दीज बार्स, if you are able to match these bars, if you are able to match this pattern, you will be able to identify people from their DNA, and this was effectively called DNA fingerprinting, right? मैं DNA का पैटर्न मैच कर पा रहा हूं यूजिंग दिस टेक्निक। आइडिया क्लियर हो रहा है कि आई एम जस्ट मैचिंग द पैटर्न ऑफ डीएनए। उसमें मैं कौन सा पार्ट यूज कर रहा हूं, जहां पर रिपीट्स हैं। रिपीट्स कहां है, सैटेलाइट डीएनए में है। सैटेलाइट डीएनए में क्यों है, बिकॉज सैटेलाइट डीएनए इज नॉन कोडिंग डीएनए। एवरीवन हैज अ डिफरेंट पैटर्न। सीआईडी और डॉक्टर सालुके की बात, चलो यार एक सेकंड, थोड़ी एक आधे कमेंट्स में मैंने काफी कंफ्यूजन देख ली, तो मैं आपको एक बार दोबारा से इस बारे में बात करते हैं। ऑल सेल्स ऑफ माय बॉडी हैव द सेम डीएनए, यस नो बोलना। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल सेल्स हैव सेम डीएनए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सबके पास सेम डीएनए, राइट। सेकंड, डीएनए हैज बोथ कोडिंग पार्ट एंड नॉन कोडिंग पार्ट, ये भी मुझे पता है, यहां तक तो मुझे इंफॉर्मेशन क्लियर है। कोडिंग पार्ट से प्रोटीन वगैरह एंजाइम वगैरह बनते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए है। थर्ड थिंग, मुझे समझ आया कि डीएनए में जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है उसमें एक पार्ट होता है कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। डीएनए में एक और पार्ट है कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट क्यों कहते हैं, सैटेलाइट कहां होती है जनरली, सैटेलाइट इज समथिंग, लेट्स से दिस इज द अर्थ, मून इज अ सैटेलाइट, इट इज सर्कुलेटिंग द अर्थ, राइट। तो इट इज लाइक अ सैटेलाइट, तो इट इज एट द एक्सट्रीम एंड। तो अगर मैं क्रोमोसोम की शेप देखूं तो ये बिल्कुल एंड पे, यहां पे प्रेजेंट होते हैं कहीं पे,
कल थोड़ा और डिटेल में क्रोमोसोम दिखाऊंगा, आज बस कॉन्सेप्ट समझते जाओ। स्लाइड्स हम कल देखेंगे डिटेल में, ठीक है। स्लाइड्स वी लुक एट टुमारो, आज की स्लाइड्स देखने की जरूरत नहीं है, कल जो स्लाइड्स होंगी उनको डिटेल में देखेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स कल की स्लाइड्स में होंगे। टुडे यू डोंट नीड टू रीड द स्लाइड्स, आई जस्ट वांट कि आज हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर लें, राइट। जितनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आज कर सकते हैं कर लेते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट डीएनए इधर है, कॉर्नर्स में है, यहां तक मुझे बात समझ आई। दिस सैटेलाइट डीएनए इज नॉन कोडिंग पार्ट। नेक्स्ट, फोर्थ कंक्लूजन मेरे पास क्या था, दिस सैटेलाइट डीएनए, जो ये सैटेलाइट डीएनए है, इसमें हर इंसान में कुछ टैंडम रिपीट्स हैं। देयर आर सम टैंडम रिपीट्स। सो टैंडम रिपीट का मतलब क्या है, जैसे एक ही सीक्वेंस AGAC एक सीक्वेंस हुई, बार बार रिपीट हो रही है, AGAC रिपीट हो रहा है, फिर AGAC रिपीट हो रहा है। Everybody in their satellite DNA has some tandem repeats. Fifth, number of tandem repeats varies. Number of repeats is different for each individual. सबके लिए नंबर ऑफ रिपीट्स डिफरेंट है और हर क्रोमोसोम पे भी डिफरेंट है। तो हर इंडिविजुअल में ऐसा होगा कि एक क्रोमोसोम पेयर 1 है, एक मदर से मिला एक फादर से मिला है, इसमें हो सकता है 5 रिपीट है, इसमें हो सकता है 6 है। और मैं ये 5 और 6 नंबर्स छोटे नंबर्स यूज कर रहा हूं। देयर कैन बी 2000 रिपीट्स ऑल्सो, देयर कैन बी 20,000 रिपीट्स ऑल्सो, ठीक है। तो इसलिए इतना वेरिएशन है, किसी में 2 है, किसी में 500 है, इस लेवल का वेरिएशन है, क्योंकि ये नॉन कोडिंग पार्ट है। इसमें अगर आपका और मेरा डिफरेंट भी हुआ, नॉन कोडिंग पार्ट में आपका चेंज भी कर दूं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई जीन चेंज नहीं होगी, कोई सेल चेंज नहीं होगा। तो नंबर अलग है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मान लो 60 है, सेकंड क्रोमोसोम है, मदर से मिला, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 800 है। सबका नंबर अलग है, सबका ये नंबर ऑफ रिपीट्स अलग है। यहां तक कोई डाउट? ये तो क्लियर है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमने लॉजिकली पढ़ा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? इसका नेक्स्ट स्टेप है कि व्हेनेवर आई हैव टू मैच डीएनए, इफ आई हैव टू मैच डीएनए, मान लो मुझे क्राइम सीन पे डीएनए मिला और मुझे उसे क्रिमिनल सस्पेक्ट से मैच करना है, रादर देन मैं पूरा डीएनए पढ़ूं, रादर देन मैं पूरा डीएनए एनालाइज करूं, जो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, जो बहुत डिफिकल्ट टू एनालाइज मॉलिक्यूल है, मैं क्या करता हूं, सैटेलाइट डीएनए को पहले सेपरेट कर लेता हूं। सबका सैटेलाइट डीएनए अलग अलग कर लेता हूं। आई सेपरेट द सैटेलाइट डीएनए एंड फ्रॉम दिस सैटेलाइट डीएनए दैट आई हैव सेपरेटेड, लेट मी चेक नंबर ऑफ रिपीट्स, लेट मी चेक दिस पैटर्न ऑफ रिपीट्स। सिर्फ इतना पैटर्न ऑफ रिपीट्स देख लेता हूं। ये सैटेलाइट डीएनए को सेपरेट करना आसान है, इट इज इजी टू सेपरेट, तो यहां भी प्रॉब्लम नहीं है। पैटर्न ऑफ रिपीट्स इज डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी, so effectively I am able to match DNA between people, so it becomes a fingerprint of DNA known as DNA fingerprinting. ये एक टाइप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बन जाती है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट सबके अलग हैं, वैसे डीएनए भी सबका अलग है, और पूरा कंपेयर करने से बेटर है that I compare the parts. This makes the process easy for me. समझ आ रहा है? DNA profiling is the same as DNA fingerprinting. कोई कह रहा है आर देयर मोर देन 8 बिलियन पैटर्न्स? देयर कैन बी 800 बिलियन पैटर्न्स ऑल्सो, बिकॉज यार आप ये सोचो ना कि कितने 23 तो क्रोमोसोम है, टोटल डीएनए कितना बड़ा है, 6 बिलियन बेस पेयर्स हैं, उसमें से इतना पार्ट है जो नॉन कोडिंग है, मेजर पार्ट इज नॉन कोडिंग। जो मेजर नॉन कोडिंग पार्ट है, उस मेजर नॉन कोडिंग पार्ट में नंबर ऑफ रिपीट्स किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, कोई भी नंबर वेरी कर सकता है, अलग अलग क्रोमोसोम्स पे अलग अलग वेरी कर सकता है।
इतना बड़ा है ना, तो बहुत वेरिएशन पॉसिबल है। मैं बस ये नंबर को काउंट कर लेता हूं। अब यहां पर कुछ एसोसिएटेड टर्म्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो टर्म्स अभी नोट डाउन कर लो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आज की स्लाइड्स देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो कल मैं स्लाइड्स आपके लिए अपलोड करूंगा वो जरूर देखना। आई विल ऑल्सो कॉम्पैक्ट देम अ लिटिल बिट, ताकि आपके लिए स्लाइड से भी पढ़ना आसान रहे। ठीक है, आज की स्लाइड्स मत देखना, कोई पॉइंट नहीं है उनका, मैं आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुका हूं। तो यहां पर अब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट आई एम चेकिंग द पैटर्न्स। नाउ आई एम आस्किंग यू what are the, first let me tell you some terms. एक टर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। एवरीबडी हैज डिफरेंट नंबर ऑफ दीज रिपीट्स। कितने हैं, 3, 5, 500 अलग अलग रिपीट्स हैं, तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। एक रिलेटेड टर्म है शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। सेम सी बात है, वीएनटीआर की बात करते हैं हम जब नंबर ऑफ रिपीट्स 50 से ज्यादा होते हैं या 10 से ज्यादा होते हैं। शॉर्ट टैंडम रिपीट्स में 2 से 6 रिपीट होते हैं। वीएनटीआर का मतलब हुआ कि ये एजीएसी 50 बार, 60 बार, 100 बार रिपीट हो रहा है तो वीएनटीआर कहते हैं। अगर मान लो से 3 बार रिपीट हो रहा है तो एसटीआर कहते हैं। इट इज सेम फॉर यू यू डोंट नीड टू डिफरेंशिएट दीज टर्म्स। सिमिलरली सैटेलाइट डीएनए में देयर इज माइक्रो सैटेलाइट डीएनए एंड देयर इज मिनी सैटेलाइट डीएनए। अगेन डिपेंडिंग ऑन ये सैटेलाइट डीएनए का साइज कितना बड़ा है। अगर छोटा सैटेलाइट डीएनए है तो माइक्रो सैटेलाइट, उससे और बड़ा है तो मिनी सैटेलाइट, और बड़ा है तो सैटेलाइट, राइट? सो दीज आर एसोसिएटेड टर्म्स। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस, दैट आई एम जस्ट गोइंग टू मैच द पैटर्न, that is the number of repeats that is different for each individual. If I am able to calculate this different number of repeats, I'll be able to effectively establish a fingerprint of DNA. That is the idea. ठीक है, ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, अब क्लियर है यार? एंड आई होप नाउ इट शुड बी क्लियर। अब कुछ होना नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, इसका नाम है डीएनए बारकोडिंग। इस पे क्वेश्चन आ चुका है। We have solved a question on DNA barcoding also, so let's just take a look at an image that will make things a bit clear for us. This is DNA barcoding. What do we do? हम क्या करते हैं कि let's say there is this area where there are lots of species present. कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, कोई नेशनल पार्क है, तो हम सारे स्पीशीज का डीएनए निकाल लेते हैं। वी टेक सम सैंपल ऑफ डीएनए एंड वी कन्वर्टेड दैट सीक्वेंस इनटू अ बारकोड इंफॉर्मेशन लाइक दिस। लेट्स से मेरे पास ये एक नेशनल पार्क है, इसमें मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं। इन स्पीशीज में से मेरे को जितनी आई कैन आइडेंटिफाई, उन सारी स्पीशीज के मैं डीएनए सैंपल ले लूंगा and I will convert it into a barcode like this. इस टाइप का एक बारकोड मैं बना लूंगा, ठीक है। नाउ मैंने सारी स्पीशीज का बारकोड बना लिया। लेट्स से सम टाइम लेटर आई फाइंड सम पार्टिकल और सम लिविंग रेजिड्यू लाइंग हियर। मुझे कुछ ब्लड यहां पर पड़ा हुआ मिला। अब मुझे नहीं पता ये कौन से एनिमल का ब्लड है, तो मैं इससे डीएनए की इंफॉर्मेशन ले सकता हूं और यहां से कंपेयर कर सकता हूं। This is DNA barcoding. So now if we read, DNA barcoding is a method of species identification using a short section of DNA from a specific gene or genes. The premise of DNA barcoding is that by comparison with a reference library, also called sequences, individual sequence can be used to uniquely identify an organism. मतलब क्या हुआ, पहले मैंने सबका डीएनए निकाल के एक रेफरेंस सीक्वेंस, सबका एक बारकोड बना लिया। जैसे सुपरमार्केट में होता है यार, जो प्रोडक्ट्स हैं सारे प्रोडक्ट्स का एक अलग अलग बारकोड है। अब कल को मुझे कोई प्रोडक्ट गिरा हुआ मिला, तो मैंने उस प्रोडक्ट में चेक किया स्कैनर से, उस पर बारकोड लगाया, चेक किया कि कौन से प्रोडक्ट से मैच कर रहा है भाई, तो मुझे पता चल जाएगा। लेट्स से आई हैव अ सुपरमार्केट एंड आई हैव बारकोडेड ऑल द प्रोडक्ट्स इन दैट सुपरमार्केट। 2 days later I find a small broken part of something lying there. मुझे कुछ ब्रोकन पार्ट वहां पड़ा मिला, मैं उसका बारकोड स्कैन करूंगा, बारकोड से पुरानी जो बैक एंड इंफॉर्मेशन है उससे मैच हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा ये किसका पार्ट है।
Similarly, I have taken all the information of DNA and put it into a barcode. I have taken all the information of DNA and put it into a barcode. All of this information, when I have put all of this information here, right, then let's say मुझे कल यहाँ पे थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल मिलता है, इसको स्कैन करके मेरे पास इजी कंपैरिजन अवेलेबल है. This is DNA barcoding. So it is like a genetic fingerprint but for species. ये हम यहां पर करते हैं, राइट. ये वाली जो इंफोग्राफिक है ये आपके नोट्स में है, उसको एक बार रीड कर लेना. सिमिलर आइडिया, सिंपल आइडिया, समझ आ रहा है? Okay. Now I have told you about DNA fingerprinting. I have told you about DNA fingerprinting. Let me ask you a couple of questions. I have told you this idea of variable number of tandem repeats. Basically इसी का analysis कर रहे हैं हम DNA fingerprinting में. VNTR analysis plus I am taking satellite DNA. I am going to write a few things here. You have to tell me in how many of these things I can use this technology. ठीक है? बताओ. You have 1 minute to think about this question. In how many of the above or the written things can I use VNTR analysis and satellite DNA analysis together? Basically मैं DNA fingerprinting कहाँ यूज कर सकता हूँ ये बताना है आपने. बताइए. वेरी गुड. मोस्ट लोगों ने सही आंसर दिया है. एक एक करके देखते हैं. पैटर्निटी डिस्प्यूट. इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्प्यूट हमेशा पैटर्निटी का ही होता है. देयर इज नो मैटरनिटी डिस्प्यूट एवर बिकॉज मदर गिव्स द बर्थ. मैटर्निटी कैन ऑलवेज बी डेफिनेटिवली प्रूवन. पैटर्निटी इज एन आइडिया. ठीक है. तो ऑब्वियसली पैटर्निटी डिस्प्यूट मींस हु इज द फादर, राइट. वेरी इजीली प्रूवन. आप पैटर्न देख लो. अगर मेरे 23 क्रोमोसोम्स के पेयर हैं, 23 pairs are there, I have total 46 chromosomes. Out of these 46 chromosomes, 23 have come from the father, 23 have come from the mother. तो मेरा जो पैटर्न है वो बहुत इजीली मेरे फादर से बहुत क्लोज होगा. मेरा पैटर्न मेरे फादर से बहुत क्लोज होगा, तो पैटर्निटी मैच की जा सकती है पैटर्न एनालिसिस करके, नंबर ऑफ रिपीट्स देख के. वहीं से आया ना डीएनए, को नया तो बनाया नहीं मैंने, तो यहां तो यूज कर सकते हैं. चाइल्ड स्वैपिंग केस क्या होता है? लेट्स से 2 children वर बोर्न इन द सेम हॉस्पिटल. उसके बाद वो नर्सरी में गए. नर्सरी में चाइल्ड 1 was placed on bed number 2
चाइल्ड 2 वाज प्लेस्ड ऑन बेड नंबर 1, और जब वो पेरेंट्स को वापस दिए गए तो स्वैप हो गया, एक बच्चा दूसरे पेरेंट्स को चला गया, एक बच्चा दूसरे पेरेंट्स को चला गया। सो सेम आइडिया है ऑफ पैटर्निटी और पेरेंटल डिस्प्यूट। आप इजीली डीएनए मैचिंग करके देख लो, जो एक्चुअल बच्चा होगा पेरेंट्स का, वहां पर देयर विल बी क्लियर कट डीएनए मैचिंग, इजीली डीएनए मैच करके दिखेगा, तो यहां भी दिक्कत नहीं है। थर्ड, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ये तो हमने देख ही लिया। डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, ये एक लेट्स से आई फाइंड अनफॉर्चुनेट डिजास्टर हुआ कोई, एंड कोई इंसान मुझे इस कंडीशन में मिला कि उनकी शक्ल देख के आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देम। कोई बात नहीं, उनके जो 4-5 रिलेटिव से उनका डीएनए मैच करके देख लो, पेरेंट्स से मैच करके देख लो, पेरेंट्स से मैच करोगे, जिनसे मैच हो जाए उनका बच्चा है, आइडेंटिफाई हो जाएगा। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। डिजास्टर विक्टिम है, लेट्स से कोई विक्टिम है, दे वर फाउंड इन सच अ स्टेट दैट उनको देख के उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, उनका डीएनए निकाल लो, कुछ लोगों का डीएनए ले लो, उनके पेरेंट्स से उनका डीएनए मैच कर लो, पेरेंट्स से तो बहुत मैच होगा। मेजर confusion would be in this option. इस ऑप्शन में कई लोगों को कंफ्यूजन हुई है। दिस वॉज द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट यूपीएससी हैड आस्क्ड। पहले चारों में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बता रहा हूं आपको। आई थिंक ये 2023 में आया था क्वेश्चन, एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो सैटेलाइट डीएनए पे क्वेश्चन आया था, ये ऑप्शन था, सब लोग कंफ्यूज हुए। अब मुझे एक बात बताओ, डीएनए का एवोल्यूशन से लिंक है? इफ आई कैन यूज डीएनए to check paternity, I can use DNA to check, or I can use DNA to establish this person इसके फादर, फादर से ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से ग्रेट ग्रैंडफादर। अगर ये सारे कंपैरिजंस मैं कर सकता हूं डीएनए को लेके, एवोल्यूशन और डीएनए का काफी लिंक है, कंटिन्यूटी ऑफ डीएनए हमने देखा है, जो स्पीशीज ह्यूमन से ज्यादा क्लोज हैं उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर मोर सिमिलर, 46-48। अगर मैं अपने फादर से कंपेयर कर सकता हूं, फादर से ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से ग्रेट ग्रैंडफादर, तो ह्यूमंस, क्या हम नहीं कर पाएंगे कंपेयर विद आवर एंसेस्टर? लेट्स से कोई कॉमन एंसेस्टर था, इससे ही एक जगह मंकीज इवॉल्व किए हैं, एक जगह इवॉल्व किए हैं आपके लेट्स से ओरंगुटान्स, एक जगह इवॉल्व किए हैं गोरिल्लास, एक जगह इवॉल्व किए हैं ह्यूमंस। तो क्या ये कंपैरिजन, डीएनए कंपैरिजन यहां पर नहीं हो पाएगा? आफ्टर वी हैव रेड अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ डीएनए, आफ्टर वी हैव रेड अबाउट सिमिलर प्रिंसिपल्स, द सेम एवोल्यूशनरी ट्री दैट इज ग्रोइंग, ऑफ कोर्स दिस कंपैरिजन इज पॉसिबल। हम पैटर्न एनालिसिस करेंगे। मैंने आपसे पूछा था कहां कहां यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यहां पे, पैटर्न सिमिलर तो होगा ही ना। समझ आ रही है बात? हमने जब माइक्रो आरएनए का स्टडी किया था तो हमने कहा था यार माइक्रो आरएनए ह्यूमंस में भी होता है और राउंड वॉर्म में भी होता है। फिर समझ आया कि यार काफी बड़ी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, जहां जहां माइक्रो आरएनए यूज हो रहा है वो ऑर्गेनिजम्स आर क्लोज टुगेदर। ये एक डीएनए पैटर्न का एनालिसिस है। अगर ये एक डीएनए पैटर्न का एनालिसिस है तो ऑब्वियसली एवोल्यूशन में भी इसको यूज किया जा सकता होगा। डीएनए का तो बहुत सिग्निफिकेंस है यहां पर। समझ आ रही है बात? So correct answer here was all of the above. आई थिंक एवोल्यूशन की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लैकिंग है। आप अगर आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो एक सिंपल सी बात सोचो, विल द डीएनए ऑफ अ ह्यूमन बी मोर सिमिलर टू अ गोरिल्ला और टू अ डॉग? ह्यूमन डीएनए इज मोर सिमिलर टू गोरिल्ला और मोर सिमिलर टू डॉग। फॉर दिस एनालिसिस कैन आई ऑल्सो नॉट लुक एट नॉन कोडिंग पार्ट? डीएनए में चेंजेस होते होते ही तो एवोल्यूशन हुआ होगा। अब बहुत डिटेल में चले जाएंगे अगर हम इसकी बात करेंगे। आई थिंक दिस शुड बी एविडेंट। पहले एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कोई होता होगा,
अर्थ पे, उसके डीएनए में कुछ चेंजेस हुए, फिर वो अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म बन गया, फिर और डीएनए में चेंजेस हुए, फिर और अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म बन गया, राइट? जो वो पैटर्न सिमिलैरिटी है उसको यूज करके मैं एवोल्यूशन को तो स्टडी कर ही सकता हूं ना. दैट वाज द आइडिया हियर. ठीक है, ऑल राइट. नाउ देयर आर सम 7 or 8 things now that we have to read tomorrow. I'm just not continuing anymore because सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने थे. 2-3 कॉन्सेप्ट, 4-5 कॉन्सेप्ट एक्चुअली और हैं जो हमें कल पढ़ने हैं. Again I am telling you there is no point of referring today's slides because tomorrow I will again rearrange the same slides and upload. तो आप कल की स्लाइड्स देख लेना. Tomorrow we are going to finish our discussion on biotechnology. मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें डिस्कस करने हैं. सबसे पहले हमें डिस्कस करने हैं वायरसेस, जो एक मेजर डिस्कशन है. वायरसेस पे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है. वायरसेस में ऑल्सो जितना मैंने आज तक आपको पढ़ाया है वो हर चीज की एक्सेप्शन है. तो आई विल जस्ट आस्क यू टू रिमेंबर देम एज सच. करेंगे उस पर कल बात. एक हमें वायरसेस डिस्कस करना है, एक हमें वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी डिस्कस करना है. काफी मेजर कॉन्सेप्ट. इम्यूनिटी इज समथिंग ऑन विच द नोबेल प्राइज ऑफ 2025 हैज बीन गिवन. तो काफी चांसेस हैं उसको आने के. देन देयर आर दीज आर 2 मेजर टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस. इसमें 2 घंटे लगेंगे. और फिर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनमें अलग से 2 घंटे लगेंगे, जैसे कि जीन थेरेपी, जैसे कि क्रिस्पर कैस9, स्टेम सेल्स, रीजेनरेटिव थेरेपी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. इन सब पे भी हम कल डिस्कशन करेंगे. कल हम अपनी बायोटेक्नोलॉजी की डिस्कशन को खत्म कर देंगे. तो इस पीडीएफ में ये जो हैंड रिटन नोट्स आपको दिए गए हैं, इसमें जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं, राइट, जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं, जैसे जीन थेरेपी, जैसे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रिस्पर कैस9, छोटे छोटे टॉपिक हैं. जीन ड्राइव, आरएनए एडिटिंग, एनिमल क्लोनिंग. इम्यूनिटी बड़ा टॉपिक है, वायरसेस बड़ा टॉपिक है. ये इम्यूनिटी, वायरसेस और वैक्सीनेशन, ये जो बड़े टॉपिक्स हैं ये, और जो छोटे टॉपिक्स बचे हैं, देखो टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, जो भी छोटे टॉपिक्स बचे हैं ये हम कल डिस्कस करेंगे. नाउ आफ्टर दिस, वंस यू सी दीज हैंड रिटन नोट्स, you will see that at the end of these handwritten notes there is something given. ये एक चीज मैंने आपको आज स्किप कराई, SDN1 और SDN2. ये इसीलिए कराई क्योंकि यहां पर SDN साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस की डिस्कशन भी हमें कल करनी है. तो कल थोड़ी लंबी क्लास होगी और इसको हम खत्म करेंगे. सो स्टेम सेल्स वी विल डिस्कस, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग वी विल डिस्कस, ऑर्गन ऑन चिप वी विल डिस्कस, प्लांट टिश्यू कल्चर वी विल डिस्कस, राइट. ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसको बस एक बार दोबारा देखेंगे. फिर एक टीलोमेयर टू टीलोमेयर प्रोजेक्ट आया था. फिर इससे एक रिलेटेड इंडिया ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जो लास्ट ईयर बहुत ज्यादा न्यूज में था. ठीक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे. इसके बाद वंस यू लुक एट दीज हैंड रिटन नोट्स, एंड में यहां पर कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस दिए हुए हैं. दीज आई विल नॉट टीच यू. इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. लास्ट के 3 पेजेस हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी के नोट्स के. देयर इज नो न्यू कॉन्सेप्ट हियर इन दीज 3 पेजेस. देयर आर ओनली 3 पेजेस लाइक दिस. कोई 1 लाइनर चीजें हैं जहां पे कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है. इफ यू जस्ट रीड दीज 1 लाइनर्स यू विल बी सॉर्टेड. कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है जो मैं आपको कह रहा हूं. सो टुमारो वी विल फिनिश आवर डिस्कशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी. And from Saturday we will start with the next topic which is health. Health खत्म करने में अगेन हमें शायद एक क्लास लगेगा. हेल्थ खत्म करने के बाद हम जाएंगे नैनोटेक, स्पेस टेक और डिफेंस पे. ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन. टुडे द क्लास वाज स्मॉल. टुमारो इट इज गोइंग टू बी correspondingly huge. Okay, so I will see you tomorrow.